So, dear students, once again welcome and let us discuss about the SFD and the BMD for some standard cases. SFD and the BMD for some standard cases, and what are the standard cases like cantilever beam with point load at free end or some point, or some simply supported beam with a point load or distributed load, uniformly distributed load or uniformly varying load. Before this lecture we have I have given developed some lectures on support reactions for uh, these standard cases, cantilever beams, simply supported beams, and the basic concepts of the shear force and the bending moment along with the convention. Okay, and what about the profile of bending moment diagram, whether it's a concave or convex, that is also given, that you can access in the description box. Let us discuss now this problem, and these are basic, and from this basic you can deal with the complex kind of problems like a beam loaded with point load, moment, distributed load, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और एक बीम के ऊपर कोई दूसरा बीम है, सो द रोलर काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो वो सब यहीं से स्टार्ट होगा, ये धीरे धीरे। लर्निंग इज वाट, लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट्स नॉट लाइक वन डे स्टडी, वन नाइट स्टडी, उससे फ्रस्ट्रेशन मिलता है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू एंजॉय द स्टडी तो आपको ग्रेजुअली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना पड़ेगा, जब उसके बाद फिर मज़ा आने लगता है, ठीक है। सो दैट लेवल यू हैव टू गेट, देन डेफिनेटली you will enjoy it. And now, regarding how to draw the shear force and a bending moment diagram. So firstly, what we have to do, as a very obvious, we know what is the next step. So to draw the SFD and BMD. So this, suppose I'm VA and this is HA and it is M, length is L, and this is the free end. So at free end W load, so it is what it is, the free body डायग्राम। तो हमने क्या किए, सपोर्ट्स को हटा दिए। सिमिलरली ये हो गया ए एंड इट इज बी, this one and this one, HA, VA, and moment and load here 8W, ठीक है। सो FBD हो गया। Why FBD is required? So that we can get the support reactions. Okay, so that is required support reactions. This is equal to what? This is equal to 0. This is equal to 0. Okay, so summation of Fy is equal to 0. Then what we get, Va plus minus W is equal to 0. Okay, and this Va, or you can Va is equal to W. So this we got. And what about the moment? So moment, let us take a section. So section I'm taking here, यहाँ पे हमने एक सेक्शन ले लिए, ठीक है। सेक्शन नेम 1 1, ठीक है। एंड डिस्टेंस सेक्शन कहाँ से, एक्स फ्रॉम बी, ठीक है। फ्री एंड से ले रहे हैं क्योंकि हम ए से लेंगे तो जो भी कैलकुलेशन करेंगे देयर विल बी टू रिएक्शंस, आइदर द VA और M. Okay, so that's why I'm taking from free end. Okay, so free end. So after this, if you cut the beam like this is B, W here, and after cutting, and this is कहाँ से कट कर रहे हैं, तो ये अपना सेक्शन 1 1. ओके, एंड आफ्टर कटिंग क्या हो जाएगा, एक हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक शेयर फोर्स, तो आप इसको चाहें तो चलिए एस से शो कर देते हैं, ठीक है, एस, एंड
ये हो गया आपका मोमेंट। ठीक है, बाय द वे अगर लेफ्ट साइड क्लिक करते तो क्या होता, लेफ्ट साइड पोर्शन, ये आपका ए हो गया, ये आपका मान लीजिए 2 2 हो गया। ठीक है, 2 2 एंड सम डिस्टेंस, सपोज द एक्स वी आर टेकिंग फ्रॉम हियर, ये चलो अब एक्स हियर वी हैव टेकन ऑलरेडी, तो मान लीजिए हियर फ्रॉम हियर वी आर टेकिंग एक्स डिस्टेंस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो साइन कन्वेंशन है, ये एस ऊपर है, सो एस नीचे, एंड द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट विल बी लाइक ठीक है, but our concentration is here right now, here. So then we have to get, and this s is what, actually s is what here, so here s is equal to this va, s is shear, s the shear force, okay, and shear force तो निकल गया। अब हमें क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट, यू हैव टू फाइंड आउट समेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड अबाउट, so about 1 1 एंड इज इक्वल टू डायरेक्शन। अब इसमें डायरेक्शन के लिए क्या करना है, आपको शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट का जो साइन कन्वेंशन है उसको नहीं देखना है। ठीक है, जो उसके पहले हम इक्विलिब्रियम में जो यूज़ करते थे वो देखना है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एम है, एंड दिस सपोज वी आर टेकिंग नेगेटिव। ठीक है, क्लॉकवाइज हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो ये एम क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर देखेंगे, दिस एम इज क्लॉकवाइज। ठीक है, सो हियर व्हाट विल बी माइनस एम। ठीक है, एट ए, माइनस एम एट ए, और सिंपली वी कैन सो द एम ओनली, इट इज योर चॉइस। ठीक है, सो मैंने एम शो कर दिया। अब उसके बाद और क्या बच जाता है, सो एम, अब इसके बाद देखिए कौन सा फोर्स है, एस है, दिस एस, बट उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट इसका जीरो हो जाएगा। सो और क्या बच गया, डब्ल्यू बच गया। फॉर डब्ल्यू व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इज व्हाट, so direction is same clockwise, that's why minus we're taking, and wx is equal to 0, then m is equal to what we get, wx with minus sign. So इससे क्या क्लियर हुआ, इससे क्लियर ये हुआ आपका, फिर से ड्रॉ करता हूँ मैं। ठीक है, ये so here what we are doing, this is the load diagram, then डब्लू आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए सेक्शन ले लेते हैं, सेक्शन के जैसे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं, बट लेफ्ट साइड में क्या है, सिंपली कैंटिलीवर बीम, सो कैंटिलीवर बीम दे आर टू सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, तो वो सपोर्ट रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सो बेटर है भैया फ्री एंड है वहाँ से, हालांकि सपोर्ट रिएक्शंस यहाँ पे निकाल चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी यहाँ से करें तो हो सकता है ज़्यादा कैलकुलेशन करें, तो रिमेंबर इन कैंटिलीवर बीम स्टार्ट योर कैलकुलेशन फ्रॉम द फ्री एंड टू अवॉइड मोर कैलकुलेशंस। ओके, सो दिस इज जस्ट डब्ल्यू कैसे एक्ट कर रहे हैं, डब्ल्यू डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, आर बी कैसे एक्ट कर रहे हैं, अपवर्ड, अपवर्ड को निगेटिव लेते हैं एज पर द साइन कन्वेंशन ऑफ शेयर फोर्स। ठीक है, एंड राइट साइड इफ यू स्टडी राइट साइड। ओके, तो ये डब्ल्यू आपका शेयर फोर्स हो गया, एंड यू कैन सी ए एंड बी के बीच में कोई लोड है नहीं है, जो भी है फ्री एंड पे है। अब फ्री एंड पे यही जो है, ये जो लोड है डब्ल्यू, ठीक है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू ए, एंड दिस इज द व्हाट, दिस डब्ल्यू इज द या रिएक्शन ए दैट वी हैव शोन बाय वी ए। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइंग एस एफ डी, शेयर फोर्स डायग्राम। अब बात करते हैं जस्ट नीचे इसके, हमने this is A, this is B, and length L, and इस पर see this M minus WX। ठीक है, so X हम कहाँ से ले रहे हैं, X हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं M B will be what,
M will be what? For at x is equal to 0 means at B, ठीक है, तो एम बी विल बी जीरो. एंड व्हाट अबाउट इफ मीन्स हम क्या कर रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं. एक्स इज इक्वल टू, ये लेंथ कितना हो जाएगा आपका, एक्स इज इक्वल टू एल हो जाएगा, ठीक है. हम अगर एल ले लें, सो मीन्स एट ए, सो एम ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल, ठीक है. सो फ्रॉम दिस इट इज़ वेरी क्लियर, यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा. एंड ए पे क्या होगा, तो ए पे क्या होगा, ये निगेटिव वैल्यू. एंड सपोज दिस इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड इज हियर डब्ल्यू एल, ठीक है. एंड ये वेरिएशन कैसा है, सो वेरिएशन इज लीनियर. तो हम एक कॉन्केव कैसा होगा, कॉन्वेक्स कैसा होगा, उसके बारे में सोचना ही नहीं है. जब लीनियर है, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू बी यू हैव टू जस्ट मैच, ठीक है. तो ये हमारा हो गया निगेटिव डायरेक्शन. एंड दिस इज बी एम डी, ओके. एंड व्हाट अबाउट सपोज इट इज एक्टिंग एट समवेयर लाइक कि बी से स्मॉल बी डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस पे है, ठीक है. तो क्या हो जाएगा इन दिस केस, मीन्स डब्ल्यू एंड बी के बीच में नथिंग इज देयर, ठीक है, नथिंग इज देयर. तो क्या हो जाएगा, दोनों में जो भी होगा W के बाद, what we got here like this, yeah, like this. So it will be, the shear force will be up to from W to A, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा B and it is A. So suppose from this distance and A क्या हो गया, it is A. So from A distance there is nothing, no load is there. That's why there will be no shear force. Shear force कहाँ तक होगा, up to B distance only. And same for the bending moment diagram. So bending moment diagram we have when the load is acting at the free end, so same we will have up to this distance, up to A, sorry, up to B. This is up to B, ठीक है. एंड ये for A distance nothing, no bending moment, no shear force. So it is with positive sign, it is with negative sign. So in this way we have done for standard shear beam, cantilever beam, how to draw the SFD and the BMD if the load is acting at the free end and at somewhere. So it is very simple. Thank you. In this way we can learn how to draw the SFD and the BMD for different beams, either the cantilever beam or simply supported beam. Thank you.